ابھی اسٹارٹ ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اسلام کے نام سے یہ چیپٹر ہے, اس کو ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہم اسلام کے بارے میں بیسک باتیں پڑھیں گے کہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسلام کے پلرز کتنے ہیں, اور اسلام ہی کیوں صحیح مذہب ہے, ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں, اور اسلام کے بنیادی کلمے کون کون سے ہیں. ان ساری چیزوں کو اس لیسن کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھنے کی ہم انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. چلو فرزانہ اسٹارٹ کرو ریڈنگ. اوکے سر. چیپٹر 3 اسلام. اسلام کے لفظی معنی امن و سلامتی, معنی امن و سلامتی اور اپنے آپ کو حوالے کر دینے کے ہیں. اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کو اسلام کہتے ہیں. جو اللہ کے حکم پر کام پر چلے اور اللہ کے نافرمانی نہ کرے وہ مسلم ہیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیے سمجھنے کا چیپٹر ہے, غور سے سنیے گا, کہیں نہیں سمجھ آئے گا تو پوچھیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ 100% آپ کو سمجھ میں آ جائے. نہیں آتا ہے تو جتنا آپ کو آ جائے اتنا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور کہیں نہیں سمجھ میں آئے گا تو پوچھ لیجیے گا. سب سے پہلے اسلام کے میننگ کیا ہوتا ہے. اسلام جو ورڈ ہے, جو اسلام یہ عربک کا ورڈ ہے اسلام, اس کا میننگ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بتایا ہے. تو 2 میننگ بتایا ہے انہوں نے اسلام کے ورڈ کا. ایک بتایا ہے امن و سلامتی, یعنی پیس جس کو ہم کہتے ہیں, پیس. تو پہلا میننگ کیا ہے, امن و سلامتی ہے. اسلام کا مطلب امن و سلامتی. اور دوسرا میننگ کیا ہے, اپنے آپ کو حوالے کر دینا, کسی کے سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اسلام شانتی کا بھی نام ہے, پیس کا بھی نام ہے. یعنی اس کا ایک مطلب پیس کا بھی ہوتا ہے, شانتی کا مطلب ہوتا ہے, اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. ٹھیک ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ ہم کریں گے, جس چیز سے روکے گا اس سے ہم رک جائیں گے. آگے اس کو اور ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اسلام کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کو اسلام کہتے ہیں. اسی لیے جو اللہ کے احکام پر چلے, احکام مطلب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں, تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو جو مانے گا, بیٹا نیاز یا تو پڑھ لو یا بات کر لو, دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوتا. نیاز نور, ہاں دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوگا, یا پڑھائی کرو یا بیٹھ کے بات کرنا ہو تو کال ڈسکنیکٹ کرو, آرام سے جا کے بیٹھ کے بات کرو. ٹھیک ہے, تو اللہ کے احکام پر چلنے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ مسلمان ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے نہیں کرتا ہے, تو اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, مسلم. کیا کہا جاتا ہے, مسلم. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے, تو سچے معنوں میں صرف اسی شخص کو مسلمان یا مسلم کہا جاتا ہے. تو اس میں ابھی ہم نے 2 چیز پڑھی. سب سے پہلے ہم نے پڑھا اسلام کے لفظی معنی کیا ہے. اسلام کا ڈکشنری کے اندر آپ اسلام کا میننگ دیکھیں گے تو آپ کو کیا میننگ ملے گا, 2 میننگ ملے گا. ایک مطلب آپ کو ملے گا کہ اسلام کا مطلب, سلطان کہاں کا ہے وہ بھائی, ایک مطلب آپ کو ملے گا کہ اسلام کا مطلب آپ کو ملے گا امن و سلامتی, یعنی شانتی, یعنی پیس. اور دوسرا مطلب ملے گا اپنے آپ کو حوالے کر دینا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, کسی کے حوالے کر دینا. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے, مسلم کہا جاتا ہے. تو اگر آپ سے 2 کوشچن کیا جاتا ہے, ایک سوال یہ کیا جاتا ہے اسلام کے کیا مطلب ہے, اسلام کا کیا معنی ہے, تو آپ بتائیں گے کہ اسلام کا مطلب ہے
सलामती, इस्लाम का मतलब है सलामती, और दूसरा मतलब है अपने आप को हवाले कर देना। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम कौन है या मुस्लिम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि उस शख्स को मुस्लिम कहते हैं जो शख्स जो है अपने अल्लाह ताला की बातों को माने और अल्लाह ताला को नाफरमानी ना करे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मुस्लिम कहा जाता है। चलो बिलाल आगे बढ़ो। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कायनात की फितरत अल्लाह का अहकाम के मुताबिक चल रही है। ठीक है। सूरज को पूरब से निकालने का बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए। जो है वो कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। ठीक है। आग को जलाने का हुक्म है, वो कभी उससे इनकार नहीं करती। गोया ये सब फितरी तौर पर मुस्लिम है। इस तरह इंसान भी अल्लाह के अहकाम का पाबंद है। इंसान को हुक्म है कि वो आँख से देख और कान से सुने। वो आँख और कान से कोई दूसरा क्या पढ़ रहा जल्दी देखना। उस लिहाज से इंसान भी फर्जी फितरी तौर पर मुस्लिम है। ठीक है। तो ऊपर बताया कि अल्लाह ताला के बात को मानना और उसकी नाफरमानी करना, उसको इस्लाम या जो ऐसा करता है उसको मुस्लिम कहते हैं। आगे बता रहे हैं कायनात की फितरत इस्लाम है। कायनात यानी दुनिया, उसकी फितरत क्या है, इस्लाम है। जो यार रहनुमा सारा कैमरा ओपन कर लो वरना मैं रिमूव कर दूंगा। तो कायनात की जो फितरत है वो क्या है, इस्लाम है। कैसे समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं कायनात की हर चीज अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चल रही है। कायनात दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, माइक बंद कर लीजिए, जितनी भी चीजें हैं उन चीजों के अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे रखा है उसी हुक्म के मुताबिक वो सारी चीजें चल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, किसका माइक खुला है भाई? शाइस्ता माइक बंद करो बेटा। तो इस दुनिया के अंदर जो भी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो वैसे ही चल रही हैं जैसा कि अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर दिया है चलने का। जैसे सूरज को पूरब से निकलने का हुक्म है, वो कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। सूरज को अगर ईस्ट से निकलने का हुक्म दिया है तो हमेशा वो वहीं से निकलता है। यानी गोया कि वो अल्लाह ताला की बात को मान रहा है। अल्लाह ताला ने जैसा उसको बनाया है वो वैसा ही काम कर रहा है। वो कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। खिलाफ वर्जी करना मतलब डिसोबे करना, किसी की बात को ना मानना। तो वो कभी ऐसा नहीं करता है कि किसी दिन वो ना निकले या किसी दिन वो नॉर्थ या साउथ से निकल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इतना लेट क्यों आए हो सरफराज? सर मैंने लिंक देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? टाइम टेबल तुम्हारे पास नहीं है क्या? है सर। तो फिर तब क्यों नहीं देखा था? लिंक तो टाइम से पहले ही आ गई थी।
हमारा नेटवर्क चालू नहीं था सर, तो इसलिए लिंक नहीं आया था। हाँ तो नेटवर्क भी मैं तुम्हारे घर पे आके चालू कर देता। चलो खैर, चलो तो उस कह रहे हैं कि वो चीजें ये कभी भी अल्लाह ताला को डिसोबे नहीं करती हैं। आग को जलाने का हुक्म, अल्लाह ताला ने आग को जलाने के लिए बनाया है, जलाने के लिए पैदा किया है, वो कभी उससे इनकार नहीं करती। उसके अंदर चाहे इंसान का हाथ चला जाए, चाहे जानवर चला जाए, वो सब चीजों को जला करके रख देती है। गोया ये सब फितरी तौर पर मुस्लिम है, ये सारी चीजें वैसे ही काम कर रही है जैसे अल्लाह ताला ने उनको काम करने का ऑर्डर दिया है, जो काम करने का उनको हुक्म दिया है वो वैसा ही काम कर रही है। इसी तरह इंसान भी अल्लाह के अहकाम का पाबंद है। इंसान के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती है, जो पाबंद है। इंसान को हुक्म है कि वो आंख से देखे और कान से सुने, ठीक है। आंखें किस लिए हमें देखने के लिए दी है, तो आंखों का काम देखना है, तो आंखों को अल्लाह ताला ने देखने के लिए बनाया है, तो वो देख रही है, ठीक है। और कान का काम सुनने का है, तो वो सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो कान कभी इस चीज से इनकार, शफक, कान कभी इस चीज से इनकार नहीं करता है कि हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो जो चीज जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, वो सारी चीजें अपने काम को, अपने ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को कर रही है पूरा। वो आंख और कान से कोई दूसरा काम नहीं ले सकता। इस लिहाज से इंसान भी फितरी तौर पर मुसलमान है, नेचुरली तौर पर मुसलमान है। गोया कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी लाजमी तौर पर अल्लाह ताला की बातों को मानती ही मानती है, वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं होती है। अल्लाह ताला ने जिन चीजों के लिए उनको बनाया है वो वैसे ही करती है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, आग हो, रोशनी हो, ये सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, वो अपनी ड्यूटी को जैसा उनको करना चाहिए वो वैसे पूरा फुलफिल करती है और अंजाम देती है। तो हमने अभी तक दो चीज पढ़ी। पहले हमने पढ़ा कि इस्लाम के माने क्या है, उस पे फिर हमने पढ़ा कि इस्लाम के माने अमन और सलामती के हैं और अपने आप को हवाले कर देने के, दो माना है उसका। फिर हमने पढ़ा कि अल्लाह के अहकाम पर जो चले और अल्लाह की नाफरमानी ना करे वो मुसलमान होता है या मुस्लिम होता है। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि इस्लाम एक नेचुरल है, इस दुनिया के अंदर नेचुरली इस्लाम को फॉलो चीजें करती है, यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए जिसको बनाया है वो उसको फॉलो करती है और वैसे ही रहती है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि इस्लाम जो है एक नेचुरल मजहब है जिसको दुनिया की सारी चीजें फॉलो करती है, ठीक है। हमारी बहन की क्लासेस अभी। क्या अहयान क्या बोल रहे हैं? सर हमारी बहन की भी क्लास अभी। तो अब मैं क्या करूं बताइए? सर एक साथ क्लासेस हो रही है, हमारे एक फोन का नेट का रिचार्ज खत्म हो गया और वो एरर आ रहा है। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उसमें हम लोग ये तो करेंगे नहीं कि रात तक क्लास लेते रहे। अब हम लोग क्या करें बताइए? अगर सबका इस तरह हम लोग ख्याल करने लगे तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक हम लोग क्लास लेते रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो बता दीजिए, हम ऐसा कर लें। हम लोग क्या करें बताइए? कोई और आपके पास सॉल्यूशन इससे अच्छा हो तो दे दीजिए, मैं बिल्कुल उसको मीटिंग में रख दूंगा और वो फॉलो किया जाएगा। अगर इसका कोई हल आपके पास है तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको मीटिंग में रख दूंगा और वही फॉलो किया जाएगा। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग भी चाहते हैं। डिस्टर्ब कर देते हैं यार। यस तो आवाज आ रही है ना मेरी? चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे कायनात की जो, माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग, माइक ऑफ कर लीजिए। तो हम माइक ऑफ करिए बेटा सब लोग, ठीक है। तो हम लोग ने ये पढ़ा कि कायनात जो है, दुनिया जो है, उसके नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम को रखा है और इस्लाम को फॉलो करती है, क्योंकि इस्लाम का मतलब अल्लाह ताला की बात को ना मानना और उसकी नाफरमानी ना करना है। तो ये सारी चीजें ऐसा ही करती हैं, जैसा अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर दिया है वो वैसे ही चलती हैं और वैसे ही काम करती हैं। चलो शाइस्ता नजीब आगे बढ़ो। शाइस्ता नजीबा आगे पढ़िए। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको?
बेकार कर दी। क्या करा है मैंने? थप्पड़ लग जाएगा तेरे। उल्लू ना रे, उल्लू ना। और आधा है। सबने म्यूट कर रखा। आ गए फिर सर। चुप बैठ जाओ। बिलाल बड़ा शांत बैठा है। चलो नियाज नूर पढ़ो आगे। चलो पढ़ो। पढ़ो बेटा, जल्दी करो, वैसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। बस अब बोलती बंद हो गई, अभी बड़ा जबान चल रही थी। चलो रखमा पढ़ो। सर हम पढ़े। इंसान और इस्लाम। इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार भी दिया है। मुस्लिम जबान पर बोलने के लिए अता की है। इससे बोलने का काम भी लिया जा सकता है, लेकिन ये इख्तियार और आज़ादी दी है कि चाहे तो सच बोले और चाहे तो झूठ बोले। अल्लाह ने सच बोलने का हुक्म दिया है। अगर इंसान सच बोलता है तो गैर अख्तियार जिंदगी में भी वो अल्लाह की फरमान भी जारी करता है। इस सूरत में वो सच्चाई पर मुस्लिम कहलाता है। उसका इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह की जिंदगी सरासर इस्लाम बन जाती है। वो अल्लाह के अनआम का हकदार करार पड़ जाता है, करार पाता है। ठीक है, तो इससे पहले बताया कि दुनिया जो है वो मुस्लिम, यानी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें इस्लाम के मुताबिक चलती है, अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया है वैसे ही चलती है। लेकिन इंसान का जो मामला है वो उससे थोड़ा सा अलग है। इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ऑप्शंस दे दिए, इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दे दिए। कह रहे हैं कि इंसान और इस्लाम, इस्लाम और इंसान का क्या कनेक्शन है। कह रहे हैं इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार भी दिया है, कुछ चीजों में उसको ऑप्शन दिया है, वो ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, दोनों तरह। जैसे सूरज के पास कोई ऑप्शन नहीं है और आग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है जो अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया है, उसको वही करना है। लेकिन इंसान के पास कुछ ऑप्शंस अल्लाह ताला ने दिए हैं। मसलन मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जबान बोलने के लिए अता की है, अता करना मतलब देना, तो अल्लाह ताला ने बोलने के लिए क्या दिया, जबान दी है, उससे बोलने का ही काम लिया जा सकता है, तो आप इससे बोलने का काम ले सकते हैं। लेकिन ये इख्तियार और आजादी दी है कि चाहे तो सच बोले और चाहे तो झूठ बोले। अब इस सिलसिले में इंसान आजाद है, अपनी जबान से वो झूठ भी बोल सकता है और अपनी जबान से सच भी बोल सकता है। ठीक है, तो उसको इस चीज में ऑप्शन हासिल है, वो दोनों काम कर सकता है। इस तरह का ऑप्शन और मखलूकात को नहीं है। सूरज चांद को मैंने बताया इस तरह का ऑप्शन नहीं है। माइक बंद कर लीजिए, किसका खुला हुआ है? सर बिलाल। अच्छा ठीक है, बंद कर लीजिए बेटा। तो चाहे तो सच बोले और चाहे तो झूठ बोले, उसको ये ऑप्शन मिला हुआ है। अल्लाह ने सच बोलने का, लेकिन अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर दिया है कुरान के अंदर और हदीस के अंदर, वो अल्लाह ताला ने क्या बोलने को कहा है, सच बोलने को कि झूठ? सच। हाँ, ऑर्डर दिया है कि सच बोलो, यानी आपको ऑप्शन दे दिया, आप दोनों कर सकते हो, लेकिन कहा है कि सच बोलना, तुम्हें सच बोलना है। अगर इंसान सच बोलता है तो गोया इख्तियारी जिंदगी में भी वो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। तो अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो अल्लाह ताला को फॉलो कर रहा है अपने जिंदगी में भी, अपने उस जिंदगी में भी जो ऑप्शनल जिंदगी है उसमें भी वो अल्लाह ताला को फॉलो कर रहा है। इस सूरत में वो सच्चा पक्का मुस्लिम कहलाएगा। और अगर वो ऐसा करता है, अपने ऑप्शनल जिंदगी में भी वो सही तरीके को इख्तियार करता है, अल्लाह ताला की बात को मानता है, तो वो सच्चा मुसलमान, सच्चा मुस्लिम कहलाएगा। उसका इस्लाम मुकम्मल हो जाता है, उसकी जिंदगी सरासर इस्लाम बन जाती है और वो अल्लाह के इनाम का हकदार होगा। समझ में आई बात? यानी इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों में ऑप्शंस दे रखे हैं, उसको हाथ दे रखा है, उस हाथ से
وہ کسی کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے اور چوری بھی کر سکتا ہے. اس کو زبان دے رکھی ہے, اس زبان سے وہ کسی کو دعائیں بھی دے سکتا ہے اور گالی بھی دے سکتا ہے. اس کو کان دے رکھا ہے, اسی کان سے وہ اچھی اچھی چیزیں بھی, اچھی اچھی باتیں بھی سن سکتا ہے, اور اسی زبان سے وہ گانے اور اس طرح کی چیزیں بھی سن سکتا ہے. اس کو آنکھ دے رکھی ہے, وہ آنکھ سے اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے اور گندی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے, تو اگر اس آپشن کے ملنے کے باوجود انسان اچھے کام کرتا ہے, اچھے کام سے مطلب وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سچا مسلمان سمجھے گا. سمجھ میں آئی بات یہ والے پیراگراف کی؟ یس سر. سر ٹھیک ہے. سلطان کیا سمجھ میں آیا؟ سلطان بیٹا سمجھاؤ مجھے تھوڑا سا, مائک اوپن کر کے. سر اللہ نے جو زبان دیا ہے, کبھی اس کو جھوٹ بول سکتے ہیں, کبھی سچ. سچ بولیں گے تو اللہ سمجھے گے کہ یہ سچا مسلمان ہے, ٹھیک ہے, ویری اور گڈ. انہیں انعام دیں گے. سرفراز آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس پورے پیراگراف سے, انسان اور اسلام والے پیراگراف سے؟ سرفراز مائک اوپن کریے. یس سر. اللہ نے انسان کو بہت سے آپشن دیے ہیں, اور چاند سورج سکتا ہے, جیسے کہ اگر کسی کو دعا دینا چاہے تو دعا بھی دے سکتا ہے, گالی دینا چاہے گالی بھی دے سکتا ہے, اور اللہ نے ایسی بہت سے آپشن دیے انسان کو. انسان کے پاس دونوں طرح کے راستے کھلے رہتے ہیں, اچھے اور برے. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ کن کو فالو کرتا ہے. چلے ٹھیک ہے, چلو شفق آگے بڑھو. یس سر. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کے ذریعے اپنے حکم بھیجے. اللہ کے حکم کی احکام کی پیروی ہر ایک پر لازم تھی. اس بنا پر ہر ایک کا دن دراصل اسلام ہی تھا, اور احکام الہی کے احکام الہی کی پابندی کرنے والے سب کے سب حقیقت مسلم ہی تھے. اس لیے قرآن مجید میں صرف صاف طور سے کہا گیا ہے کہ تمام رسولوں کا دین اسلام تھا. تمام رسول اور ان کے لائے ہوئے احکام کی پیروی کرنے والے سب کے سب مسلم ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کا دین جو ہے اسلام ہی تھا, ہر قوم کا جو ریلیجن تھا اصل معنوں میں اسلام ہی تھا. یعنی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ماننے اور اپنی نافرمانی کرنے کا ہی حکم دیا تھا. کہہ رہے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کے ذریعے اپنے احکام بھیجے. اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے رسولوں کو بھیجتا رہا. آپ آگے پڑھیں گے رسولوں کی بارے میں کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہوں پر رسول کو بھیجتا رہا تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے